Hello friends. So myself Raja Parmar, and from today onwards we are going to study sociology optional for 2023 UPSC, in which we will see how to approach sociology, how to handle sociology questions, and so many things. We'll go with the syllabus. Whatever is there in our syllabus, we'll do that in detail. ये जो हमारी क्लास है ये दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी. Material will definitely in English language. So let's start. First thing, before going to take any subject as your optional is to understanding that subject, and the understanding comes from the papers. So you have to see the syllabus ki what are the topics there. If you are very much comfortable with the topics, then you can go with that optional. One more thing, while choosing a optional subject is that आप अगर किसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर. फर्स्ट, that you are comfortable with that subject, you love that subject very much, because then only you will get marks. आप तभी लिख पाओगे जब आप उस सब्जेक्ट से प्यार करोगे. अदरवाइज बिलीव मी यू विल नॉट गेट मार्क्स. सो किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो आप उसके सिलेबस को देखिए, आप लिख कर देखिए एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट क्वेश्चंस that UPSC is asking in previous year, if you are feeling that you can attempt that questions, no matter how much you can attempt, like if you are able to write 2 to 3 lines on that questions before means अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप अगर 2-3 लाइन लिख पा रहे हैं, then you can go with that subject. Otherwise no need to take that optional as your optional. सो हम उसी तरह से जाने वाले हैं. सोशलॉजी आप अगर चूज़ करना है आपको सब्जेक्ट, तो सोशलॉजी आप कैसे चूज़ करेंगे? आप सबसे पहले उसका सिलेबस देख लीजिए. एवरी यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. सोशलॉजी भी इसी तरह से पेपर 1 एंड पेपर 2. सोशलॉजी पेपर 1 में फंडामेंटल ऑफ सोशलॉजी है. इन पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इज़ देयर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द पेपर्स, गो विद द सिलेबस इन डिटेल. अभी हम ये जो 2 क्लास लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये दोनों क्लासें जो हैं सिर्फ डिस्कस करेंगे कि व्हाट सोशलॉजी इज़ अबाउट. हम इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हाउ टू अप्रोच दिस सोशलॉजी ऑप्शनल. एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग इस सब्जेक्ट को बेहद ही लाइक करने लगेंगे, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट इट गिव्स अस वैल्यूज़, इथिक्स, एवरीवेयर दिस सोशलॉजी इज कम्स. सो हम ये सब देखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्रोच इट. सो वी विल अप्रोच इट थ्रू syllabus. We will approach it through this syllabus. So next thing is कि link between sociology and other GS subject. There is a great link between sociology and other GS subject, like in GS paper 1 Indian society is there, which is nothing but this sociology only. If we are going with sociology, then definitely we will cover this Indian society wala part there. So no need to study in GS paper 1. Then in GS paper 2 also social issues are there, which is nothing but this elderly and education, health, women's, child. These are topics are related to sociology only. Then this sociology comes in ethics also, like if you are covering your syllabus completely, then you will see कि you are also able to answer ethics question. And then essay is also there. We all know that every year we get essay from education, from women's. These all are subject of sociology. So a sociology optional candidate get more marks in essay than I don't think in other subject. So this is the thing. And the most important thing is the presentation of your answers. A person who is presenting his answer
will get more marks than a person who is only reading and not know the technique how to present that answer. So presentation of answer is very important. Your writing also matters up to a mark. Like if your handwriting is very good, you will definitely get 10% extra marks, because the examiner don't know who are you, but he know the copy in front of him. If it is looking good, definitely you will get marks. So this is the logic behind it. We'll go to next. Next is what sociology is all about. So how sociology come into effect? Like there was a gap between political science and economics, and that gap is fulfilled by sociology. So sociology was nothing but a necessity at that time. What was happening? Sociology developed as an independent discipline during 1950s. And one more thing, every subject has its origin from sociology. So what were happening that time? The political science was looking for a state, constitution, and the political aspect of the society. Democratic state, egalitarian society, egalitarian state. So it was looking for the political problems, and the economics was looking for economical problem. But the gap between economics and political, like uh, everything is about this human being, na? And human being is part of society. So ultimately it's a society where this all took changes, and this all happen, the whole things is happening. So हमें उस समय क्या हुआ कि एक ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास जो है, ना तो पॉलिटिकल साइंस वो गैप को फुलफ़िल कर रहा है, ना इकोनॉमिक्स को वो गैप फुलफ़िल कर रहा है। तो हमें एक ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सोशल आस्पेक्ट को भी अच्छे से पढ़े। तो हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई, और हमने 1950 में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, डेट इज़ सोशियोलॉजी। देन व्हाट वाज हैपनिंग कि in 1850s also there was a industrial revolution. So because of this industrial revolution, the rural population shifted to the urban centers where this mechanical activities taking places. Machineries was there. So urban centers was developed because people were going to the centers and working there. They were settled there. So these all things taking place, and because of this there are social changes in the society. So we can say that sociology is a product of intellectual necessity. Then sociology studies three things: individual behavior, institutions and group, and social process. These three things are studied by sociology. So individual behavior is studied by psychology also, but psychology missed that social aspect of the society. Psychology consider only human being and individual as their main subject, but sociology considered all human being with their bonding to the culture, society, etc. So these are the things. Then institutions and groups and social process, how this social change took place, what are the processes, like education. Through education also society changes. So these all things are there. We will see this all in detail, so it is all about introduction only. Next is how the nomenclature of sociology. So how sociology came. So Saint Simon was the first person who gave a word social physics. Like in this social physics, he was interested in defining sociology as how physics changes the society. This is what the meaning of social physics is. Like how physics is making changes in the society, and what changes are coming from the physics for the society. So this is the social physics concept. And then Auguste Comte gave this nomenclature sociology. He gave कि इसने कहा कि दो लेटर हैं, ग्रीक वर्ड हैं दो, वन इज सोशियोस एंड द अदर इज लोगोस. सो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है.
सोशलॉजी जो है वो अगस्त कोम्टे ने ये डेफिनेशन दी है सोशलॉजी की। नेक्स्ट इज August Comte say one more thing, that our discipline is product of necessity, but the nomenclature is product of accident. So this is what one thing is famous for sociology, कि our discipline is a product of necessity, but the nomenclature is a product of accident. This is how sociology come into effects. दो वर्ड से मिलकर बना है, याद रखना है, ग्रीक्स वर्ड है दोनों, सोशियोस सोशियस एंड वन इज लोगोस। तो इन दो वर्ड से मिलकर बना है सोशलॉजी। अभी हम नेक्स्ट आते हैं मेन थिंग्स पर। यह तो होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सोशलॉजी का। अब हम यूपीएससी के सिलेबस पैटर्न पे चलते हैं। सो यूपीएससी ने सोशलॉजी को, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो यूपीएससी है इसने सोशलॉजी को दो पेपर में बांटा है। पेपर 1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ सोशलॉजी एंड पेपर 2 दैट इज़ इंडियन सोसाइटी। सो पेपर 1 में 10 चैप्टर है। अभी हम ये दोनों चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। दोनों क्लास हमारी इसी पे रहने वाली है। अभी की जो क्लास है उसमें हम पेपर 1 का देख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ सोशलॉजी। नेक्स्ट क्लास में विल सी अबाउट द इंडियन सोशलॉजी, व्हाट इज़ इंडियन सोशलॉजी इज़। अभी पेपर 1 का सिलेबस उठाते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं टोटल 10 चैप्टर हैं, जिनको हमने 5 डिफरेंट यूनिट में बांट रखा है। एवरी यूनिट में अप्रोक्सीमेटली 2 सब्जेक्ट्स तो हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फंडामेंटल ऑफ सोशलॉजी हमारे पेपर 1 का टाइटल है। इसके अंदर हमने 10 जो चैप्टर हैं बांट रखे हैं टोटल। 10 चैप्टर को हमने अगेन 5 डिफरेंट हेड में बांट रखा है। यूनिट 1 हमारी जो है, अब आप सिलेबस उठा लीजिए अपना सब, और अब हम सिलेबस के थ्रू जाने वाले हैं। सिलेबस को समझते हैं पहले, उसके बाद सिलेबस के अंदर क्या है वो समझेंगे। सो सबसे पहले सिलेबस में आपने देखा होगा कि सोशलॉजी द डिसिप्लिन, इस तरह से एक फर्स्ट हेडिंग दिख रही है। उसके अंदर 3 कैटेगरी में उन्होंने बांट रखा है। पहली जो हम कहेंगे कि पहली जो हेडिंग है सिलेबस में वो है सोशलॉजी द डिसिप्लिन। ये जो यूनिट है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज़ मॉडर्निटी, सेकेंड इज़ स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, एंड थर्ड इज़ सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। So first thing is the syllabus of UPSC is divided this way, but what we divided is like this. We divided this unit 1 into 5 subheadings, that is introductory, origin of society, in which we will see this modernity. So your first topic will start from here, and then relationship between sociology and other disciplines, then nature and scope of society, and then we will see sociology and the common sense. So this is how the unit 1 is. Then unit 2 is there, in which methodologies is there. chapter 2 and chapter 3, ये 2 चैप्टर हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट इज, वेट अ सेकंड, 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हैं, और 2 पार्ट हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, थियोरेटिकल है। सेकंड पार्ट जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। सो ये 2 पार्ट हैं। 2 मेथड रहने वाली हमारी, पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड। पॉजिटिविस्ट मतलब ऑब्जेक्टिविटी वाली, मीन्स साइंस। पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट, 2 methods are there. Positivist means scientific, non positivist means non scientific. Positivist means objectivity is there, no subjectivity, facts are there.
नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी इज़ देयर, लाइक इन सोशोलॉजी देयर इज़ नो फैक्ट, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ दैट बीइंग हु इज़ डिस्क्राइबिंग दिस। सो यहाँ ये दो चीज़ें होती, दो दो मेथड है, दो पार्ट हैं, और मेथडोलॉजी को हमने दो चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, देखेंगे हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 3 पे, यूनिट 3 को फिर अगेन हमने दो पार्ट में बांट रखा है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो सोशलॉजी की जो थ्योरीज़ हैं वो यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम सोशलॉजी की थ्योरी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज़ में हमारे पास 6 जो हैं वो थिंकर हैं। फर्स्ट 3 आर यूरोपियंस एंड नेक्स्ट 3 इज़ अमेरिकन्स। तो ये हमारे पास थिंकर है। हम इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स, इमाइल दर्कहाइम, मैक्स वीवर, तालकोट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन और मीड, जीएस मीड। उसके बाद हम स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी को देखेंगे। सो थोड़ा थोड़ा हम यही देख लेते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है सोशलॉजिकल थिंकर, जो आपका 4th पॉइंट दे रखा है वो सोशलॉजिकल थिंकर, उसमें फर्स्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की हमें 4 बहुत चीज़ें पढ़ना है। फर्स्ट इज़ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स की हमें 4th थिंग पढ़ना है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सेकेंड इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज़ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट वन इज़ एलियनेशन। सो दीज 4 थिंग्स आर देयर। उसके बाद इमाइल दर्कहाइम की भी हमें 4 चीज़ें पढ़ना है, डिवीज़न ऑफ लेबर, रिलीजन, सोसाइटी और सोशल फैक्ट्स। सो ये इमाइल दर्कहाइम का। उसी तरह से हम इमाइल दर्कहाइम की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इमाइल दर्कहाइम जो है पॉजिटिविस्ट हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। देन विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैक्स वेबर का एक मानना है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि सम पीपल सेज कि देयर इज़ नथिंग लाइक फैक्ट, इट इज़ डिपेंड ऑन देयर माइंड। तो ये मैक्स वेबर कहते हैं, मतलब ये रैशनल माइंड को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशलॉजी की मेथड्स होती हैं, 3 मेथड है सोशलॉजी की, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड एंटी साइंटिफिक मेथड्स। तो हम ये सब देखने वाले हैं सोशलॉजी के अंदर। What are the views of Durkheim on society, etc. We'll see in detail. Don't worry about it. This is only introduction. उसके बाद टालकोट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन और जीएस मीड, ये सारे जो स्कॉलर हैं, ये तीनों स्कॉलर जो हैं ये 1950 के अराउंड आए हैं, 1950 के अराउंड। अब इस टाइम पे क्या है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही थी। दिस ऑल 3 आर फ्रॉम अमेरिका। सो ये लोग भी जो हैं ये कैपिटलिज्म की थोड़ा और जाएंगे, ये थोड़ा कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ नथिंग बट like it is a ladder in which society is divide, like upper class, lower class, middle class, these all the classes, and society can be divided on any ground, inequality based, class based, caste, gender, ethnic group, किसी पे भी डिवाइड हो सकती है। सो वी विल सी डेट। उसके बाद हमारे पास है यूनिट 4, दैट इज़ सोशल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 4 में हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है पेपर 2 में भी हैं, सेम इसी तरह से रहने वाले हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन में वी आर हैविंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, सोसाइटी। तो ये हमारे पास पेपर 2 में भी हैं, ऐसे के ऐसे ही। हम एक ही पढ़ने वाले हैं, पेपर 1 में पढ़ेंगे तो पेपर 2 में भी वो कवर होगा।
और ऐसे में हम लोग टॉपिक जहाँ से पाते हैं वो यही सारे टॉपिक हैं। हम बस यानी कि यूनिट 4 हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ऐसे में भी यू विल गेट मार्क्स इफ़ यू विल कंप्लीट इट इन डिटेल। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में वी विल सी कि सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ऑफ डिफरेंट सोसाइटी लाइक स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट। सो ये सारी सोसाइटियाँ दो तरह से बटी हुई थी। दिस इज़ वॉट द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सेज। लाइक द स्लेव सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मास्टर एंड स्लेव। फ्यूडल जो सोसाइटी थी डेट इज़ डिवाइडेड इंटू लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स। एंड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द इंडस्ट्रियल क्लास एंड द वर्किंग क्लास। उसके बाद इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर, these are the way we can divide these institutions. Then political institutions. In political institutions, power is something, and power comes from money, we all know. And one more thing, what is money? Just give your answer in the comment section, what you think money is. Then next class we will define money in a different way. सो पावर इज़ कंटेक्चुअल, ये भी है पॉइंट कि पावर जो है वो कंटेक्चुअल है। मैक्स वीवर कहते हैं कि पावर इज़ कंटेक्चुअल। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वन हैज़ पावर बट ऑन द अदर में नॉट हैव। सो किसी के पास कभी भी पावर आती जाती रहती है। दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़ अबाउट, जो कि मैक्स वीवर का है। उसके बाद नेशनलिज्म वी विल सी इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नेशन, स्टेट, प्रेशर ग्रुप, दिस ऑल आर देयर इन योर यूनिट इन पेपर 1 का टॉपिक नंबर 7, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, एवरीथिंग इज देयर। देन फैमिली, मैरिजेस, किनशिप, दिस ऑल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसी की यूनिट 5। यूनिट 5 जो है वो सोशल प्रोसेस के बारे में है। सोशल प्रोसेस के बारे में यूनिट 5। एंड यूनिट 5 के अंतर्गत 5 सब सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज सोशल थ्योरीज टू सोशल चेंज। क्या क्या थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज वी विल सी। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड द सोशल चेंज। देन एजेंट ऑफ सोशल चेंज क्या क्या हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। सो दीज आर नथिंग बट द एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल इन डिटेल। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि पेपर 2 के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये हमारी दोनों क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड हो जाएंगी, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सारा हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट 5 से जो हैं वो यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। यूनिट 5 विल गिव यू 30 मार्क्स। 30 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं यूनिट 5 से। उसके बाद चलो यूनिट 4 पे। तो ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ से 10 नंबर के समथिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर में सब में। इसमें 20 फैमिली किनशिप, इनमें 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा आइडिया है। उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी। तो ये रिलीजन एंड सोसाइटी नॉट ओनली इम्पोर्टेंट हेयर बट ऑल्सो इन द GS एंड ऐसे। सो हम यहाँ से मोर देन 50 मार्क्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस टॉपिक्स। उसके बाद यूनिट 3 से जो है यूनिट 3 में थिंकर्स आर देयर। सो यूनिट 3 में यू विल गेट मार्क्स। सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका और भी बाकी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वीबर। हमें ये सारे बिल्कुल रटना है और इन सारों को हमें इतना अच्छे से करना है कि हम इनकी सारी फिलोसॉफियाँ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इन 6 के अगर हम आइडियाज़ ही लिख दें केवल किसी आंसर में, तो ही हमारा आंसर गुड लुकिंग आंसर बन सकता है। उसके बाद यूनिट 2 इज़ मेथोडोलॉजी। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं मेथोडोलॉजी से। देन फंडामेंटल ऑफ सोशोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन ले लो यहाँ से भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट 1 पेपर 1। ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में
हम यूनिट अगली क्लास में हम पेपर 2 देखेंगे, पेपर 2 का सारा सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी की क्लासें। हम कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में हो सके उतना हो जाए, और बाकी पढ़ना आपको भी रहेगा। क्लास में उतना नहीं रहेगा, वी विल अपलोड PDFs। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे PDF मिलेंगे। पर अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि PDF आर वेरी शॉर्ट्स, सो इट विल बेटर फॉर यू गाइज टू मेक नोट्स। उसके बाद हम अगर बात करें तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है सोशियोलॉजी की क्लास में। नो मैटर क्लास से लाइव नहीं रहेगी, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। आप अगर कमेंट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर्स इन नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली। और अगर रहेगा ऐसा तो हम विल डू ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑन संडे। तो संडे को हम डिस्कशन सेक्शन रख लिया करेंगे, और हम सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वो सिर्फ संडे को क्लियर किया करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लाइव क्लास हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि टाइम मुझे थोड़ा कम ही मिल पाता है। तो जब भी आई विल गेट टाइम आई विल मेक दिस वीडियोज़, एंड संडे को हम बैठ के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लिया करेंगे अगर ऐसा हुआ तो अभी की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बने रहिए बस। चलिए।